4880 4880 وہ امپورٹنٹ لیول ہے. اگر اس کے اوپر مارکیٹ نے سٹے کیا تو ہم پھر 5150 کو ٹچ کریں گے. یہ پھر ہمارے اوپر اس کو ٹچ کرنا واجب ہو جائے گا, کم از کم 5150. اچھا, کچھ اب نئے لوگ بیٹھے ہوں گے جو اکثر کامنٹ کرتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں جی اتنی لمبی ویڈیو. بھائی وہ آپ کے لیے جو کام کی بات تھی نا وہ میں نے پہلے 5-4 منٹ کے اندر کر دی. باقی یہ جتنے ہم دوست آپ بیٹھے ہیں نا جن کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ ہے یا جن کو ہمارا چہرہ دیکھنے کا شوق ہے ان کے لیے باقی گپ شپ ہے. آپ کا کام تو ہو گیا تھا. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صدق اللہ العظیم. جی السلام علیکم. کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ موڈ مزاج کام روٹین دوست احباب سارا کچھ فٹ فاٹ ہے؟ اللہ پاک آپ کو صحت دے, آمین. گیپ اپ اوپننگ کا کچھ لوگوں کا ذہن تھا, کچھ لوگوں کا تھا جی اسٹریٹ اوپننگ, کچھ لوگوں کا ذہن تھا گیپ ڈاؤن اوپننگ کے ساتھ مارکیٹ آپ کی اس ویک میں کھلے گی. یہ گزر چکے لمحات گیپ ڈاؤن اوپننگ کے ساتھ مارکیٹ گئی ہے اور مارکیٹ نے جو اس ٹائم پہ اس کی پورے دن کے ٹائم میں جو ریکوری تھی وہ اگین کر لی اور پچھلے ٹائم 5 بجے تک اگین تھوڑا سا پریشر مارکیٹ میں بنا اور فزیکل ریٹ جو ہے وہ اس رینج کے اندر آیا کہ جو میری پسندیدہ رینج ہے, جہاں پہ میں انٹریز کے حوالے سے تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہوں فار شارٹ ٹرم اینڈ فار مڈ ٹرم. المختصر کہ آنے والے دنوں میں فنڈامنٹل نیوز جو بھی ہیں اس کو چھوڑ دیں. فنڈامنٹل نیوز یہ مذاکرات ہوئے بیچ میں, یہ پھر یہ ساری جو امن مذاکرات کی کوششیں اور پاکستان کا کردار اور خواجہ آصف کا ٹویٹ اور کس طرح کس کیفیت کے ساتھ یہ سارے مذاکرات تھے وہ ہو گئے, اس کا رزلٹ بھی سامنے آ گیا اور کس طریقے سے ڈٹھائی اسرائیل کے سامنے اور امریکن پریشر بھی جے ڈی وینس پہ بہت زیادہ تھا کہ بھئی آپ نے جو مذاکرات ہیں اس نہج کے نہیں کرنے, اپنے پوائنٹ منوا کے اٹھنا ہے. وہ صاحب ایران اس کنڈیشن میں تھا, چھوڑ دیں اس کنڈیشن کو. آپ نے ہرمز فردر اس کا محاصرہ کیا جا رہا ہے. آج کو پاکستانی ٹائم 8 بجے پتہ نہیں 9 بجے کے قریب اس کا حصار ہو جانا تھا. وہ بھائی کیسے حصار ہو جانا تھا؟ بھائی یہ کہانیاں یہ چلتی رہیں گی. امریکہ بڑے طریقے سے خود کو اس جنگ سے نکال دے گا اور جو جس کا انٹینشن کے ساتھ ہی آیا تھا اسی انٹینشن سے یہ واپسی چلا جائے گا. اب اس ساری چیزوں کو چھوڑ دو, یہ فنڈامنٹل تھیں. ٹیکنیکلز آ جاؤ. 4880 وہ امپورٹنٹ لیول ہے. اگر اس کے اوپر مارکیٹ نے سٹے کیا تو ہم پھر 5150 کو ٹچ کریں گے. یہ پھر ہمارے اوپر اس کو ٹچ کرنا واجب ہو جائے گا, کم از کم 5150. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 10-15 ڈالر کی آپ ٹالرنس رکھ دیں. ٹالرنس کا مطلب اگر آپ لوگ سمجھتے ہوں کہ 10-15 ڈالرز کا تھوڑی سی مندہ تیزی, اگر کوئی ٹارگٹ آپ کو دیا جائے وہ 90% اٹین ہو جائے, اوپر کا 10% اس لیول تک نہ جائے وہ 90% تک جا کے واپسی آ جائے تو 10 ڈالر کی آپ نے ٹالرنس رکھنی ہے. 4850 سے 4880 سے اگر اوپر نکلا تو پھر 5150. ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے کسی بھی ٹائم اب جہاں اب بھی مارکیٹ کھڑی ہے یہاں سے یہ سارا ڈاؤن ٹرینڈ ہے. المختصر یہی بات بنتی ہے کہ ان ریٹس میں اگر رسک لیا جائے, کیا حاضر بازار جہاں پہ 4700 کے قریب مارکیٹ اس ٹائم پہ ٹھہری ہے, 4720 ہے, 4718 ہو جاتی ہے, 4708 ہو جاتی ہے, ان گھروں میں اس ٹائم پہ ٹریڈ کر رہی ہے مارکیٹ اور ٹائم تقریباً ہے پورے 11. تو اس کی جو کلوزنگ ہے آج کے دن کی
डजेंट मैटर कि क्लोजिंग कहाँ है इसकी, क्योंकि जहाँ से ये टूटा है और फिर जहाँ पे ये आके नीचे इसने बॉटम किया और उसी एरिया के दरमियान में ट्रेड करा, आज ये इसी एरिया के दरमियान में ट्रेड करेगा, कन्फ्यूजन एज इट इज़ मेंटेन रहेगी। कल का दिन इसके लिए थोड़ा सा ऐसे $15-20 की मूवमेंट और एक पैनिक की पोजीशन, अब गिरी मार्केट, अब गिरी मार्केट आपकी गिरने वाली नहीं है। थोड़ी बहुत एंट्री बनाना चाहें तो आप एंट्री कर सकते हैं। चांदी के हवाले से अगर इसके कुछ टारगेट्स को डिस्कस किया जाए तो चांदी में बाबा जी सिंपल सी पोजीशन है। आज जो हाफिज वाली रानी थी वो आपकी मिल रही थी 8800 रुपए के अंदर, और जो विदाउट स्टैम्प थी वो 8700 के ऊपर। थोड़ी देर के लिए ऐसे 20-25 मिनट के लिए कोई थोड़ा सा रेट मजीद इससे 50-60 रुपए नरम हुआ था, जो रानियों की बात कर रहा हूँ। बाकी जहाँ पे पीस की बात है तो वो आपका 9100, 9050, 9080 इस एरिया के अंदर, इवन के उस सख्ती के लम्हात में जब थोड़ा सा प्रेशर मार्केट में पूरे 9000 में भी पीस खुशी से दस्तयाब था। चाहे वो KBE हो, चाहे वो PSL हो, चाहे वो जो भी नाम हो, नए नए नाम, नए नए मुजस्मे, नई नई शक्लें चांदी के पीसों में इस दफ़ा मुझे देखने को मिली हैं, पहले नहीं थी देखी हुई। बहरहाल वो सारी प्योर हैं, 24 कैरेट हैं, ओके। और जो KG बार है वो भी इसी एरिया के अंदर थी। आज हमने बहरहाल छोटी सी ख़रीदारी का टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था। अब वो आने वाला दिन साबित करेंगे, कोई हफ्ता 10 दिन साबित करेंगे आया वो हमारी मूव हमारे लिए बेहतर थी या नहीं थी, ये आने वाले दिन डिसाइड करेंगे। बहरहाल आज हमने थोड़ी बहुत ख़रीदारी ज़रूर बनाई है, सोने के हवाले से भी और चांदी के हवाले से भी बेहतर परसेंटेज के साथ मार्केट के अंदर इस टाइम पे हम मूव कर रहे हैं। बाकी हालात वाक़यात हैं, देखें जितना एक मार्केट कंफ्यूज है उससे ज़्यादा कंफ्यूजन हम खुद भी अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। जितना मार्केट कमज़ोर है हम उतना कमज़ोर हैं। अगर उससे हम ज़्यादा कमज़ोर होने की कोशिश करेंगे तो फिर वो ये है कि फिर वही पैनिक वाली बात हो जाएगी या फोमो वाली बात हो जाएगी, या हम इस तरह मार्केट के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते कि इसको यहाँ पे छोड़ दें और इसकी मूवमेंट लेट बी डिसाइड, उसके बाद हम कोई ना कोई डिसीजन लें। जितनी एक कन्फ्यूजन है, जितनी एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है जो कियास जनरेट किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने फियर एंड ग्रीड को मेंटेन करके चलना है, सीधी सी बात है। और जहाँ तक मेरी समझ में आया इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग यही है कि हमने थोड़ा बहुत आज ख़रीदारी की है। आप सावधान, जब आप तक ये वीडियो पहुँचेगी लेट होगी, हो सकता है कल आपको 25-50 रुपये चांदी में भी थोड़ा सा रेट बेहतर मिले, ऊंचा मिले। बहरहाल 700-800 रुपये के करीब करीब चांदी में यहाँ से बेहतरी। अब जो ऊपर फंसे पड़े हैं वो यही है कि सर अब हम ना बेच सकते हैं ना ये कर सकते हैं। देखें जी, नेक्स्ट आपके पास अगर कैश इन हैंड है तो आप अपनी एंट्रीज़ को अकेमुलेट करें सुबह लाजमी, ताकि उसकी ऊपर वाले की एवरेज थोड़ी सी बेहतर हो सके। अगर फंड अवेलेबल नहीं है, किसी सूरत नहीं है, तो फिर या तो इसको बेचा जाए, बेचने का ये पॉइंट नहीं है। बेचने के लिए आपको 8-10 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, आपका बेचने का रेट आएगा और उसमें फिर आप फिर मजबूत होने लग जाओगे कि नहीं अब तो इसने जितना रुलाया था रुला दिया, अब ये टॉप लेवल्स की तरफ या अपनी रैली की कंटिन्यूटी की तरफ अगेन बढ़ रही है टू द हायर लेवल्स। ये असाब की गेम चल रही है, टोटल मैनिपुलेशन चल रही है। थोड़ा सा वक्त आपका गुजर चुका है मार्केट में, इंशाल्लाह कुछ ऐसा मजीद भी गुजरेगा, आपको चीज़ों का आइडिया खुद ही होने लग जाएगा। फिर आपको झंझोड़ के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भी अब क्या करना चाहिए, फिर आप मुझे सजेशन दे रहे हो कि इस तरीके से है और इस तरीके से नहीं है। बहरहाल अल्लाह पाक आसानी करे। आप तक इंफॉर्मेशन ये देनी थी, बेसिकली जो इंटेंशन है कि मार्केट के इन लेवल्स के ऊपर मार्केट को छोड़ा नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत एंट्री ज़रूर करना यहाँ पे बनती है, टू बी फ्रैंक। बाकी देख लें जैसे आपको बेहतर लगे। और कोई ख़ास बात नहीं है जी, गपशप का मूड था, आपसे सलाम दुआ करनी थी। चंद एक दोस्त हैं जो वीडियो के लिए भी कह रहे थे सर जी कोई वीडियो शीडियो दे दें, कोई पोजीशन इस तरीके से कोई वाजे कर दें, कोई बन जाए कोई। चलें जी, ये आप लोगों के लिए मैंने एक हिंट क्या पूरी तफसील समझा दी है कि किन लेवल्स के ऊपर ख़रीदारी आपके लिए बेहतर है और किन एक लेवल्स पे निकला जा सकता है। और सोने में भी इसी तरीके से रेट बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना है, ज़्यादा नहीं।
اور جہاں پہ ہم انٹری لیتے ہیں انشاءاللہ اس سے پھر آگے بہتری ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ پاک کی عطا ہے. کوشش کرتے ہیں اللہ پاک اسی میں برکت ڈال دیتا ہے. یا ہمیں جس طرح ہوتا ہے نا سکس سینس کام اسی ٹائم پہ کرنے لگ جاتی ہے کہ جب ہمیں کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ سارے حالات اس طریقے سے ہیں, کچھ نالج بیس چیزیں ہیں, کچھ اسیسمنٹس ہیں, کچھ ٹیکنیکل چارٹنگ کی ریڈنگ ہے اس طریقے سے. بہرحال جتنا وقت گزرے آپ کا آسانیوں میں گزرے, اللہ پاک ہر مسلمان کو نقصان سے بچائے. ویسے نفع اور نقصان دونوں میرے رب کی طرف سے ہیں, میں کبھی نقصان سے پیچھے نہیں ہٹا, ٹھیک ہے جی. اور جتنے شاید میں نے نقصان کیے ہیں اپنی اس ایج میں, آپ مجھ سے بڑی ایج والے بھی بیٹھے ہو, چھوٹی ایج والے بھی ہو, تو جو بڑی ایج والے ہیں جب وہ میری ایج کے اندر تھے, جس ایج میں ہوں, میں بھی اتنا نقصان نہ کیا ہوں بہرحال, اور شاید اتنا سیکھا بھی نہ ہو. یہ تو ہے نا کیا چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے اس ٹائم پہ. بہرحال آسانی ہوگی جی. کرم فرماؤں کا شکریہ, دوستوں بھائیوں کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا, بور سے ویڈیو دیکھی. انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کو ایک بور ویڈیو دیں گے, لیکن 5-4 دنوں کے بعد جب یہاں سے ایگزٹ بنے گی انشاءاللہ. شارٹ ٹائم کے لیے انٹری ڈالا کریں, زیادہ ٹائم ویٹ کیا کرو یار, انتھک انتظار کیا کرو. میٹل کے اندر رہ کے بھی اب مسئلہ تو یہی ہے نا کہ کہاں پہ انتھک انتظار کیا جائے. بے ڈھنگا انتظار کیے بیٹھے ہو, 6 مہینے ہو گئے ہیں, 4 مہینے ہو گئے ہیں. بھئی انتظار تو ہم نے بھی کیا ہے, تو ہماری کیوں نہیں وہ لیول دار ہے. 14-15 ہزار چاندی والے, 16 ہزار, 17 ہزار, اللہ اکبر, 18 ہزار, وہ لیولز نہیں آ رہے. اور جہاں پہ سونے کی بات کی جائے تو وہ 5, 80, 70, 65, 80 والے وہ ایریاز. انتظار تو بڑا کیا بیٹھے ہیں جی ہم. اس طرح کے جو انتظار ہے نا, بس پھر یہ خام خیالی بن جاتے ہیں. تو تھوڑا سا کوشش کریں, وقت دیں اپنے آپ کو, ذرا مارکیٹ کے چارٹ کو ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں, تھوڑا سا یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں, کچھ انڈیکیٹرز کو پڑھیں, کچھ ان کی فنکشنالٹی دیکھو یار, کچھ سیکھنے کی طرح ہو. ہمارا ملک جس طریقے سے چیزیں مینوپولیٹ ہو رہی ہیں, جو ڈی ڈالرائزیشن کا ایک کانسیپٹ چل رہا ہے, آنے والے دنوں میں میچور ہو جائے گی یہ چیزیں. دیکھیں ایک چیز کا انسان کو آئیڈیا آتا ہے, پھر وہ اس کا تھوڑا سا اس پہ ورک کرتا ہے, فیل ہوتا ہے, اگین ورک کرتا ہے, تھوڑا زیادہ کام کرتا ہے, پھر فیل ہو جاتا ہے, لیکن سیکھ جاتا ہے, پھر اسی طریقے سے کام کرتا ہے, وہ ایک دن سکسیس ہو جاتی ہے. اور جو تالی بجانے والے باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس کا لک اچھا تھا. وہ فیلیئرز کوئی نہیں یہاں پہ دیکھتا, اور نہ یہاں پہ فیلیئرز کسی کو. ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ فیلیئرز ہی ڈسکس کیے جائیں, جہاں جہاں سے مار لگی, جس حالات سے حالات و واقعات سے گزرے, وہ کچھ لوگوں کے لیے روز روشن کی طرح عیاں رکھے جائیں. بھلے وہ کوئی اعتبار کرے یا نہ کرے ان چیزوں کو, وہ دیکھے نہ دیکھے, ہمارا ایک وہ تھوڑا سا دل ہلکا ہو جائے گا یار, چلو میں کسی سے ڈسکس کر لیا. بہرحال لیکن یہ بھی انسان کی فطرت ہے نا کہ بھئی وہ اس کو کسی ایک چیز سے روکا جا رہا, بھائی اس طریقے سے نہیں کرنا, تو وہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے نہیں میں تھوڑا خود اپنا پرسنل ایکسپیرینس اس کے اندر دیکھوں گا. میں یہ ہو سکتا ہے ہر کسی کے ہاتھ کی ہتھیلیاں ڈیفرنٹ ہیں جی, فنگر پرنٹ ڈیفرنٹ ہیں, تو فلاں ڈیفرنٹ ہے, تو ہر کسی کی لک ڈیفرنٹ ہے. لک بیس اصل میں انسان کسی پہ ٹرسٹ کرنا نہیں چاہتا. جو حالات و واقعات بن گئے, جو معاملات ہیں, دغا بازی, 2 نمبری اور بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ بھی ضروری ہیں زندگی میں, بہت کچھ سکھا جاتی ہیں یار. کون سی مار کو کہاں سے شروع کیا جائے, کہاں پہ روکا جائے. آئے گپے ماریں گے جی, فی الحال ریسٹ کریں, تھوڑا بہت ہو سکے تو انٹری کریں, نہیں تو اوپر کی انٹری بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سکون سے بیٹھو, کہیں کچھ نہیں جا رہا. وقت تھوڑا لگائے گا, ضائع کرے گا بقری والی عید تک, یا اس کے بعد بھی تھوڑا سا. یہ 2026 کا جو لیولز دیکھ کے مخلوق بیٹھ گئے نا, 6,000 ہو جائے گا, 6500, 7,000 ہو جائے گا 2026 کے اینڈ میں. یار کچھ مار لگنے والے سال بھی ہوتے ہیں. کبھی لمبی ماریں نہیں کھائی نا تم لوگوں نے, چپیڑیں نہیں کھائی. جس نے کھائی ہوئی ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, وہ تو اوپر نفع نقصان کر کے سائڈ لین ہو گیا. جس نے نہیں کھائی ہوئی
तो वो अभी देखेगा, अभी लक को भी आजमाएगा, अभी एक्सपीरियंस को भी आजमाएगा, अभी ताए चाचे मामे फुफड़ की आवाज़ भी सुनेगा, और लेन देन अगर उसके हैं या किसी से उसने दस्ती पैसे पकड़ के सामान लिया हुआ है तो वो उनकी मिन्नतें वो अलग कर रहे हैं, या नफ़े नुकसान सर पे बेच के दीगर अशिया इधर अब किस्मत आजमाई कर रहा था, क्योंकि इसके हाथ में 2-3 दफ़ा बटेरा आया है। 14,000 पे 13,000 पे चांदी ली है और फौरन में 15-16,000 हो गया, तो इससे काबिल शख्स था कोई नहीं ना पूरे माशरे में, और वो लेने के देने थोड़े से पड़ रहे हैं। बहरहाल ये सख्तियाँ भी इंसान के लिए ज़रूरी हैं, मार लगनी चाहिए, अल्लाह की सुन्नत है, पहले मारें फिर थोड़ा सा सब्र शुक्र की सलाहियत, उसके बाद थोड़ी थोड़ी अता, फिर एकदम इतनी अता कि फिर संभाली नहीं जाती। लेकिन ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस का जो पहला खुश्क टेन्योर है ना, जिसमें सिर्फ सन्नाटे होते हैं, गुमशुदगियाँ होती हैं, कर्ब होते हैं, लान तान होती है, ठीक है, नफीस इंसान के ऊपर जब लान तान की जाए और उसको ऐसे वो जिस तरह लान तान तो दरख्त के ऊपर हरे भरे फलदार दरख्त के ऊपर भी करे ना बंदा, उसको कोसे, वो भी जड़ों से खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो उस तरह के टफ एंड डिप्रेशन में मुझे बहुत सारे दोस्त मिले हैं यार, ये यूट्यूब से, उन्होंने ड्रिंकिंग शुरू कर दी है, ये नफे नुकसान। अच्छा एक मिनट, ड्रिंकिंग करने से, हेलो साजी, ड्रिंकिंग करने से कोई जान छूट जाएगी, या कोई घर से निकल गए हैं, कोई लेन देन है, कोई ड्रिंकिंग शुरू कर दी है, कोई कहता है मुझे अपने बाल बच्चे अच्छे नहीं लगते, भाई नफ़े नुकसान में होते हैं। अगर इतना स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर इस तरह की हरकत, ये इस धात में, सर मेरा अच्छे खासा कपड़े का कारोबार था, VIP का, थोक का, होलसेल का, तो मैंने तो वहाँ से फंड निकाल के इधर डाला था, मेरी तो तबाहियाँ फिर गई, मैं अगली पार्टियों को ना माल दे सकता हूँ, ना पिछली पार्टियों की रूटीन भुगतान चला सकता हूँ, ना ये है ना वो है, रोने धोने। अच्छा कुछ अब नए लोग बैठे होंगे जो अक्सर कमेंट करते हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं जी इतनी लंबी वीडियो, भाई वो आपके लिए जो काम की बात थी ना वो मैंने पहले 5-4 मिनट के अंदर कर दी। बाकी ये जितने हम दोस्त अब आप बैठे हैं ना, जिनके साथ थोड़ी सी गपशप है या जिनको हमारा चेहरा देखने का शौक़ है, ये उनके लिए बाकी गपशप है, आपका काम तो हो गया था। हाय हाय हाय। अच्छा कुछ लोग ये है कि मसीहा टाइप ढूंढ रहे हैं, या मुझे वो क्या कहें, यानी कि एज ए मसीहा देखते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं तौबा इस्तग़फ़ार, यानी कि वो ये समझते हैं कि भाई इसके हाथ में हाथ देंगे, और भाई हमारे बदबूदार हाथ हैं ऑलरेडी, ठीक है, हमारी वो तबीयत नहीं है कि भाई किसी की मजबूरी से शदीद। अच्छा मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसी ऑफ़र्स की हैं, मैं आपको यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, सेंसर बातें हैं, समझ लें। मुख्तसर ये मैं बता दूँ हिंट के तौर पे कि हमारी ज़िंदगी की जमा पूंजी आप अपने हैंड ओवर कर लें और उसको आप जिस तरीके से सर्कुलेट करें और फर्दर ये वो, मैंने कानों को हाथ लगाए, सख्ती से रोका। कुछ लोग तो मेरे घर तक पहुँचे हैं कि सर ये इसको इस तरीके से कर दें, उस तरीके से कर दें, हमें आप पे ट्रस्ट है। मैंने कहा भाई मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं है। अंधा एतमाद करने वालों की भी लाइन लगी खड़ी है, धोखे देने वालों की भी लाइन लगी खड़ी है। खुदा की कसम हम सब ने मर जाना है, वो 10-1 साल बामुश्किल, वैसे तो एक लम्हे का पता नहीं, जो हमारी एवरेज चल रही है, जिस जनरेशन में हम पैदा हुए, जो हम अभी से कोई ना कोई 1 आधी गोली 2 गोलियां टैबलेट वगैरह को, ब्लड प्रेशर, कोई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल, कोई फलां चीज़ें हमारी खड़का खुड़की शुरू हो गई है। और मैं किसी से रकम इस वजह से नहीं ले सकता ना यार, देखो पीछे कल को कोई इस तरह के मामलात हों, मेरे लवाहिकीन वो लौटा सकें ना लौटा सकें हैं जी, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो भी जनाजा आता था ना, और तो हजूर पाक उससे पूछते थे लोगों से, भाई इसके किसी के साथ लेन देन को मामलात कोई, हाँ जी इसके हैं। अब जनाजा नहीं पढ़ाते थे जब तक वो साहब कराम अपने सर पे ना ले लें, वैसे यार इसने 15 लाख देना था मिसाल के तौर पे, तो एक खड़ा हो जाएगा भाई 2 लाख मैं दे दूंगा, 3 मैं दे दूंगा। जब तक वो रकम एडजस्ट नहीं हो जाती थी जनाजा नहीं पढ़ाया जाता था। इतने नफीस आका हमारे, इतनी रहमत पूरी जहान के लिए लेन देन के मामला में।
इधर लेन देन को लोग समझते ही कुछ नहीं, धोखाधड़ी को अपनी चालाकी और चुस्ती समझते हैं। रिस्क हलाल करने के लिए भी कोई काम धंधा किया जाए ना, आजकल के हालात तो ऐसे बन गए हैं, रिस्क हलाल के लिए कोशिश हो, बंदा कोई काम करे, कोई चीज़ ले, कोई चीज़ बेचे। उधार अलग चीज़ है, यहाँ के 5-10 दिन में पेमेंटों के शेड्यूल और मामला तो 4-4 महीने 6-6 महीने, उसके बाद उल्टा पैसे मांगो तो वो भी नहीं है। मेरे अपने साथ भी कुछ इस तरीके से वाक़यात हुए हैं, ठीक है, पेमेंटें हैं, रूटीनें हैं, डिस्टर्बेंस है, मामला आते हैं, लेकिन हालात में पाकिस्तान के आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को वक्त से पहले तो नहीं सीखा जा सकता, लेकिन कोशिश करके थोड़ा चुस्ती के साथ सीखने की कोशिश करो। फिजिकल मैनिपुलेशन जो लोकल मार्केट में होती है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, थोड़ा सा चार्ट रीडिंग करो, नहीं तो इस काम से निकल जाओ ना यार। मैं आपको कोई ज़बरदस्ती इस काम में घुसेड़ रहा हूँ कि नहीं भाई जो भी काम है, जो भी बंदा है ये वो छोड़े, इधर इस काम के अंदर जो दूर से नफ़े दिखते हैं, ये यूँ समझ लो मगरमच्छ अपना मुंह खोल के बैठा है, उसकी ज़बान को हाथ लगा के हाथ वापसी खींच के आना है। और एक दफ़ा शायद थोड़ा सा वो कॉन्शियस ना बैठा हो, आपका हाथ लग जाए ज़बान को, बस सलामत निकल गए, फिर दूसरी दफ़ा भी वहीं डालना है, साइडों से डालना है, आगे से डालना है, कभी हाथ आ भी जाता है, समझ आ रही है। लेकिन वो फिर परसेंटेज और रिस्क मैनेजमेंट और फेयर एंड ग्रीड की जो यूँ समझ लें इंतज़ामात हैं वो संभालने पड़ते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ता है चीज़ों को। हमें यहाँ पे वीडियो के अंदर ये सर जी मुख्तसर जल्दी बस इसको ओके करें, आखिरी बात क्या है, पहले इस वजह से मैंने उनसे गपशप कर ली। आपके साथ नेक्स्ट फिर गपशप करेंगे जी। कोई टॉपिक आप सजेस्ट करें जिसके ऊपर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मुझे कमेंट वगैरह कर दें, फिर इंशाल्लाह मैं उसको देख के उसको थोड़ा सा स्टडी करके इंशाल्लाह आपकी खिदमत में रखूँगा। हाय बहुत सारे मेरे शागिर्द ऐसे हैं जो अब उस्ताद हैं, खुशी होती है उनको देख के, वो किस तरीके से फर्दर मिसाल है, लोगों को लीड कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, अच्छा लगता है। एक लेगेसी चल रही है ना, लेगेसी जिस तरह से चल पड़ती है, उस्ताद दर उस्ताद। वो मैंने नाम तो बाय द वे रख लिया था चुगताई बाबा, लेकिन जिस तरीके से शागिर्द हैं और टीमें बनती जा रही हैं तो 2-4 तीले सर में सफ़ेद आ गए हैं, तो आप लगता है ये नाम ठीक रखा था, अब तो हम बाबा बन गए हैं जी, और क्या करें। कुछ नहीं सूझ रहा आपसे गपशप को, फिर गप मारेंगे जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना अपने अहले खाने का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय वुल्फ्स स्टे ब्लेस्ड ऑल गाइस। खैरियत ना रहो यार।